morning, everyone. So I, Atipriya, on behalf of the entire management of City University, extends a hearty welcome to all the esteemed dignitaries present over here and to my lovely students and the faculty members. We are gathered today over here to celebrate the Entrepreneurship Awareness Program on Self-Employment Opportunities, and this program is initiated by the MSME DI Government of India. And today we have with us the esteemed dignitaries Shri Kundan Lal, IEDS Assistant Director from Ministry of MSME Government of India. We have Shri Sarabjit Singh, LDM, Punjab and Sindh Bank, Ludhiana. We have Shri Balvinder Singh Sidhuji, Functional Manager, DIC, Ludhiana. We have Mr. Amit, the MD from Vast Linkers. And we also have Dr. Abhishek Tripathi ji, our Pro Vice Chancellor, City University, and Dr. Avdesh Kumar Gupta ji, Dean Academics from City University. So I extend once again a hearty welcome to you all, and without taking much time, I'll request Abhishek sir to please come to the dais and extend the welcome address to the colleagues. Thank you so much. Good morning, everyone. It's a great day, but I want to start with a quote. The success of young entrepreneur will be the key to India's transformation in the new millennium. And this is quote by the great Dhirubhai Ambani ji. No other forum can be there which has better composition than what we have today, to actually deliver session and also the, I would say, awareness program on self-employment opportunities. I would like to welcome Shri Kundan Lal ji, IEDS Assistant Director, Government of India, Ministry of MSME. Shri Sarabjit Singh ji, LDM, Punjab and Sindh Bank, Ludhiana. Shri Balvinder Singh Sidhu ji, Functional Manager, DIC, Ludhiana. And Shri Amit Sharma ji, MD, Vast Linkers Private Limited. First of all, I would heartily welcome all of you to this place, our university. And I'm really happy that you've thought of spreading this awareness to our students. I was just discussing with Amit sir about the skill gap we have when students move from academic institution and they become part of the industry. And I believe there is much of talk which has already happened about the industry gap. Let us try to bridge that gap now. It is time to take action. Both academia and industry will have to take steps to bridge this gap. Academia will have to change itself, will have to change with the Macaulayan method of learning to the modern methods of learning which are adopted by various countries, various institutions of developed and developing countries all across India. And at the same time, industry will have to help academia to find out the gap with the measures how it can be bridged in our curriculum design, in the delivery of the curriculum, in spreading awareness amongst our students. It is very important that our students, being an Indian, as we already have that mindset of being a job seeker, students should be moved, at least this new generation should be moved out of this mindset to move to job creators from job seekers. Having my small business, I can actually understand what job creator means and what actually it feels like when you are a job creator rather than job seeker. But I think the forum we have today that is best to guide our students, and that is why I would like to also appreciate the efforts of our
Department of IQAC led by Dr. Atipriya sir, to organize this session for our students, and I'm sure that our students will make 100% use of today's session from the stalwarts of the industry. Without wasting much of your time now, I would rest, and I'm really eager to listen to each and every one of you, and really eager to make sure that my students learn everything, each and everything, whatever you teach, and we actually implement and bridge the gap between industry and academia. Thank you. एंड सभी को नमस्कार। रेस्पेक्टेड डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी जी, प्रो वाइस चांसलर, सिटी यूनिवर्सिटी, रेस्पेक्टेड डॉक्टर अतिप्रिया जी, डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सिटी यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अवधेश कुमार गुप्ता जी, डीन एकेडमिक्स, सिटी यूनिवर्सिटी, श्री सर्वजीत सिंह जी, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, पंजाब एंड सिंध बैंक, लुधियाना, श्री भूपेंद्र सिंह जी, सीनियर इंडस्ट्री प्रमोशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, लुधियाना, श्री अमित शर्मा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, वास्ट लिंकर्स प्राइवेट लिमिटेड, लुधियाना, एंड अदर ऑफिसर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स of City University, and dear students, first of all, I welcome to all of you on the behalf of Ministry of MSME, Government of India, Department of Micro, Small and Medium Enterprises, Development and Facilitation Office, Ludhiana. Dear friends, इस आज का जो सेशन है, टुडे सेशन इज एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम। डॉक्टर त्रिपाठी जी ने अभी इस प्रोग्राम के एम के बारे में आपको ब्रीफ किया कि इस प्रोग्राम का क्या एम है, आपको क्यों, वाई वी आर गैदर हियर, हम क्यों आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इस प्रोग्राम की क्या नीड थी जो यहाँ पर ये प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, कि हमें जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना है। जॉब क्रिएटर कैसे आप बन सकते हैं? आप अपना सिटी यूनिवर्सिटी से चाहे मैनेजमेंट की डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री आप यहां से कर रहे हैं, लेकिन सभी की मन में ये कि विचार होगा कि हमने एक अच्छी एक जॉब मिल जाएगी, अच्छी एक प्लेसमेंट हो जाएगी। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप सभी जानते भी हैं, कि जॉब अपॉर्चुनिटीज डे बाय डे कम होती जा रही हैं, और हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे वो मैनेजमेंट कॉलेज हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे आईटीआई हैं या पॉलिटेक्निक्स हैं, एज पर आवर नीड
डे बाई डे उनको एफिलिएशन मिल रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है। क्यों? ये हमारी नीड है। एजुकेशन इज मस्ट। जब तक हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी, हम ना तो एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे, ना ही कोई जॉब मिल पाएगी। बट जॉब, जब हम डिग्री कर रहे होते हैं तो हमारे मन में होता है कि हमें जॉब मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, जो 0.005% IAS PCS में चले जाते हैं, उसमें से 30-40% स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो जाती है मल्टीनेशनल कंपनीज में या दूसरी कंपनीज में। बट हमारे पास 60-70% स्टूडेंट बच जाता है और उनको जॉब नहीं मिल पाती। तो उनके मन में एक ही आता है कि भाई हमने इतना एजुकेशन में अपना पैसा भी लगाया, अपना टाइम भी लगाया है, लेकिन हमें जॉब नहीं मिल पा रही, तो क्या करें। उसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं, जिससे कि आप अपना जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बन सकें। अब उस जॉब देने वाले बनने के लिए आपको एक नॉट ओनली मिनिस्ट्री ऑफ MSME, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं अपना कोई भी वेंचर स्टार्ट करने में। तो आपको आज इस प्रोग्राम के द्वारा यहां पर आपको किसी भी वेंचर को स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। तो फाइनेंशियल स्कीम्स क्या क्या हैं और उसका आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, उसके लिए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हमारे साथ आज यहां पर उपस्थित हैं। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट की, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनका कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं अपना वेंचर स्टार्ट करने में। उसके लिए ऑफिसर श्री भूपेंद्र सिंह जी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर से हैं। और आपने अपना कोई भी वेंचर स्टार्ट करने के लिए आपको कैसे स्टार्ट करना है, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स पेश किए जाएंगे। उसके लिए वास्ट लिंकर से श्री अमित शर्मा जी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आपको बताई जाएंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? प्लीज मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सिंसियरली, आप लोगों के लिए ये स्कीम्स लेकर के आए हैं। आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है और ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अगर आप सुनेंगे तो आपको फ्यूचर में ये स्कीम्स काम आने वाली हैं जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके यहाँ से निकलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये मैंने बताया कि सारे डिपार्टमेंट्स आज यहाँ पर आए हुए हैं जो आपको ये जानकारी देंगे कि आपने अपना वेंचर स्टार्ट करना है तो कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा आपने किस किस डिपार्टमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं वो भी डिस्कस करना है। तो मैं पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ MSME के बारे में बताना चाहूँगा। कितने लोग जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME के बारे में या डिपार्टमेंट ऑफ MSME DFO के बारे में? कितने स्टूडेंट कोई हैंड रेज करें, कोई जानता है इसके बारे में? वेरी गुड बेटा, क्या जानते हैं आप? थोड़ा सा प्लीज़, और आपके साथियों को भी पता लगेगा कि आप जो जानते हैं वो उनको भी आना चाहिए प्लीज़, तभी आप बेनिफिट ले पाएंगे किसी भी डिपार्टमेंट का। जगदेव जी माइक दो जरा उनको। जगदेव जी माइक दो। जी बताएं प्लीज। Okay, good morning, sir. My name is Diksha from
how to start a venture by their own, which is the need of an hour. Okay. But regarding MSME, MSME के बारे में क्या जानते हैं? So it's a government body that helps the students to learn about it, and also they can maybe like finance also. ओके, थैंक यू। ये इन्होंने कहा ये गवर्नमेंट बॉडी है, इट्स ए गवर्नमेंट बॉडी, और ये एमएसएमई को स्टार्ट करने में कैसे हेल्प करती है? हेल्प करती है, लेकिन कैसे ये नहीं पता कैसे करती है। मैं आपको आज ये पहले बताना चाहूँगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का जो डिपार्टमेंट है, दिस डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड इन 1956 आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये देखा गया कि हमारे कंट्री का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, तो इनमें दो चीज़ों को ही लिया गया मेनली, एक एग्रीकल्चर और दूसरा इंडस्ट्री। तो जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश किए गए, और इसी तरह से इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए सर मैं आपको बताना चाहूँगा 1956 में एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम दिया गया था SIDO, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1956 में। अब देखिए कितना पहले ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया था, और इसमें मिनिस्ट्री का नाम दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और डिपार्टमेंट का नाम SIDO, लेकिन फील्ड के ऑफिस का जो नाम था वो था SI स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, लघु उद्योग सेवा संस्थान। जैसा इसका काम था वैसा ही इसका, जैसा इसका नाम था वैसे इसका काम था कि लघु उद्योगों के विकास के लिए ये काम करता था डिपार्टमेंट। बट बच्चों, लघु उद्योग किसको कहेंगे? उद्योग किसको कहेंगे? इंडस्ट्री। एनीबडी एल्स प्लीज? इंडस्ट्री किसको कहेंगे? जिसमें किसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कोई फिनिश प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री, जिसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। बट सर ये देखा गया कि जो आजकल की हमारी जनरेशन है, उस समय 1956 में आईटी नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कि इन सभी फील्ड में जाकर के आप कोई भी काम अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं, उसमें सर्विस एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती हैं। तो सर्विस एक्टिविटी को कैसे इस मिनिस्ट्री में उसको इंक्लूड किया जाए जिससे कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसका वो बेनिफिट ले सके। तो अक्टूबर 2006 में एक MSME एक्ट तैयार किया गया और उसको पार्लियामेंट में पास कराया गया, और उसके बाद इस डिपार्टमेंट का नाम बदल करके 1956 से चला आ रहा था, 2006 में बदल करके इसको MSME DI किया गया, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जैसा कि उस बच्चे ने बताया, और मिनिस्ट्री का नाम बदल करके MSME कर दिया गया मिनिस्ट्री का नाम। लेकिन ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज कर दिया इंडस्ट्री से, मींस सर्विस सेक्टर को इसमें इंक्लूड कर लिया गया और इसको कैटेगराइज कर दिया, जिससे कि जो हमारे आप जैसे स्टूडेंट हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जब निकलें तो आप अपने आप को एक एंटरप्राइजेज के रूप में या एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आप कह सकें कि मैं एक माइक्रो या स्मॉल या मीडियम एंटरप्रेन्योर हूं। तो माइक्रो किसको कहेंगे, स्मॉल किसको कहेंगे और मीडियम किसको कहेंगे? तो इसको ये उस समय इन्वेस्टमेंट बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया, जो हम प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया। लेकिन 1 जुलाई 2020 से इसको इन्वेस्टमेंट एज वेल एज टर्नओवर बेसिस पर डिफाइन किया गया अगेन। तो अब मैं आपको
बताना चाहूँगा कि माइक्रो एंटरप्राइजेस किसको कहेंगे, जिसमें कि 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक का टर्नओवर आपका हो सकता है माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक का टर्नओवर। मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ तक का टर्नओवर आपका हो सकता है। तो इसको इस तरह से डिफाइन किया गया। और जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई या स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनका बेनिफिट लेने के लिए आपकी एज ए एंटरप्रेन्योर एक लीगल आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए। तो जो पहले जब ये मिनिस्ट्री ऑफ एसएसआई था, तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर से भूपिंदर सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको मालूम भी होगा कि एक एसएसआई का सर्टिफिकेट इशू हुआ करता था, जो कि आपके पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता था और वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे। प्रॉब्लम होती आती थी, कई बार ऑफिसर मिलते थे, नहीं मिलते थे, फील्ड में भी होते थे। इसी तरह से जब ये एक्ट लाया गया एमएसएमई एक्ट 2006 में, तो ईएम पार्ट 1 और ईएम पार्ट 2 कर दिया गया। वो भी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर से इशू होता था। ईएम पार्ट मीन्स प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, ईएम पार्ट 2 मीन्स परमानेंट रजिस्ट्रेशन। बट फ्रेंड, जैसा कि सर आप देख रहे हैं कि हमारे ऑनरेबल पीएम साहब का सपना है कि हमने मेक इन इंडिया बनाना है। मेक इन इंडिया बनाने के लिए हम सभी का एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, तभी मेक इन इंडिया बन पाएगा। तो उसके लिए कि हमें जो आने वाली हमारी जनरेशन है, अगर कोई भी वो बिजनेस स्टार्ट करती है, तो उसके लिए किस तरह से इस रजिस्ट्रेशन को ईजी किया जाए। तो 2015 में इसकी एक जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन कर दी गई और उसका नाम दिया गया उद्योग आधार मेमोरेंडम नंबर। ऑनलाइन आप 10 मिनट के अंदर अंदर अपना कोई भी सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हैं, अपनी एंटरप्राइजेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। लेकिन उसमें भी कुछ खामियां देखी गई कि एक एक एंटरप्रेन्योर जो कि उसके कई इंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश कर लेता है, तो एक आधार से लिंक किया गया और वो एक एक के साथ 5-5 एस्टेब्लिश कर लेते थे। तो जो हमारी एमएसएमई की डेफिनेशन है वो फुलफिल नहीं हो पाती थी। लेकिन 1 जुलाई 2020 से ही इसको एक नया नाम दिया गया था, इसको माइग्रेट कर दिया गया उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से। आप लोगों के लिए बहुत इजी है। इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर चुके हैं, अपना कोई भी वेंचर स्टार्ट कर चुके हैं। तो उनको अगर अपना कोई रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसको आधार एज वेल एज पैन के साथ भी लिंक कर दिया गया। और इसको जब पैन के साथ लिंक किया है तो इसमें आपके पास आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर और उस बैंक का आईएफएससी कोड, ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आप अपना सर्टिफिकेट खुद ही जनरेट कर सकते हैं। यू कैन गेट विद इन द 10 मिनट्स योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये आसान किस लिए किया गया कि आप जैसे स्टूडेंट हैं, आप अपना कोई भी वेंचर स्टार्ट करें और करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। अब एक तो ये मैं आपको बता रहा था। दूसरा, अब हमारा क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर आप अपना कोई वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, वेल एंड गुड, नहीं मिलती, आप अपना चाहते हैं कि हम अपना कोई काम शुरू करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास? सबसे पहले प्लीज क्या होना चाहिए? आइडिया। व्हाट टाइप ऑफ आइडिया? किस तरह का आइडिया होना चाहिए? टेक्निकल आइडिया आपके पास होना चाहिए, तकनीक आइडिया होना चाहिए। बहुत बढ़िया। उस आइडिया को आपने कॉमर्शलाइज करना है, आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास? मनी। आइडिया को, इफ यू हैव एनी इनोवेटिव आइडिया और you want convert in business,
तो उसके लिए भी हमारी एक स्कीम है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप एक इतना रिनाउंड जो सिटी यूनिवर्सिटी है उससे अपनी एजुकेशन कर रहे हैं और इसमें आप टेक्निकली यहाँ से करके निकल रहे हैं। अगर आप टेक्निकली इसको साउंड हो जाते हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके और आपके पास टेक्निकल आइडिया है और उसको आपको मनी की जरूरत है, तो मनी की दूसरी स्कीम भी है। एक तो इनोवेटिव आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए, दूसरा आपके पास अगर ऑलरेडी टेक्निकली आप साउंड हैं और आप करना चाहते हैं कुछ, तो उसके लिए भी कौन सी स्कीम है वो भी डिस्कस करेंगे। बट इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे ऑफिस में हर ट्रेड के एक्सपर्ट हैं, चाहे वो ग्लास, सेरेमिक्स, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल एंड हॉजरी, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी ट्रेड में अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले अगर आपको टेक्निकल नो हाउ चाहिए तो वो हमारा इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये गाइड करता है कि इस इंडस्ट्री के लिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी मशीनरी और कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, कहाँ से मशीनरी मिलेगी, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड किया जाता है। जब आपके पास टेक्निकल नो हाउ आ गया, टेक्निकल नॉलेज आपको मिल गई, उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि आप अपना इंजीनियरिंग या आप अपना एमबीए करने के बाद भी अपना सेटअप नहीं कर पाते हैं, और मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, हम ओनली सिटी यूनिवर्सिटी में नहीं, बहुत सारे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स में हमने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो उनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन होती है फिर भी वो नहीं अपना वेंचर सेटअप कर पाते। क्यों नहीं कर पाते और क्या होना चाहिए जी, कोई बताएं? मनी का आपने बता दिया, आपने टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया, इसके बाद क्या होना चाहिए आपके पास? ट्रेनिंग क्या होना चाहिए प्लीज? एनीबडी एल्स? स्टूडेंट्स, जिसके लिए आज आपको यहां पर गैदर किया गया है कि आपके पास एक एंटरप्रेन्योरशिप का भी नॉलेज होना चाहिए, जो कि नहीं होती है एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज, कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है और वो कैसे सक्सेस होता है और क्या सक्सेस एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटीज होती हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट है ये भी आपको एक ट्रेनिंग 2 वीक्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, जिसमें हाउ टू प्रिपेयर ए बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केटिंग टेक्निक्स, इसके अलावा अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग की कुछ एक्सरसाइजेस लाइक रिस्क टेकिंग बिहेवियर, जो एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ होती हैं उनके सबके बारे में। इसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी लाइक बैंकर्स है या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है या दूसरे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, उनको भी एज ए फैकल्टी मेंबर उसमें इनवाइट किया जाता है, सो दैट कि वो भी आकर के आपको गाइड करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, ये भी सर फ्री ऑफ कॉस्ट या ऑलमोस्ट सिर्फ 100 रुपीज़ जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट से जस्ट टोकन ऑफ रजिस्ट्रेशन के रूप में लिया जाता है। और उसका जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है फिर वो सर्टिफिकेट ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा, नॉट ओनली इन पंजाब। मान लीजिए आप ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे, आप कहीं भी चले जाते हैं, वहाँ पर भी जाकर के अगर आप कोई अपना इंटरप्राइज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर के भी आप कर सकते हैं। और उस सर्टिफिकेट के बेस पर आप जब फाइनेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उसके बेस पर बैंक में भी प्रेफरेंस दिया जाएगा कि यू हैव सम नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर आप कोई काम करेंगे तो वो काम आपका फेल नहीं होगा, तो उसके बेस पर भी आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। दूसरा हमारा एक प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो 6 वीक का होता है। उसमें आपको 2 वीक्स का एंटरप्रेन्योरशिप और 4 वीक्स टेक्निकल या ट्रेड ओरिएंटेड या सब्जेक्ट ओरिएंटेड उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा एक प्रोग्राम होता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो 1 वीक का प्रोग्राम होता है,
उसमें अगर आपने कोई वेंचर स्टार्ट कर लिया है तो उसको कैसे आपने मैनेज करना है, उसके बारे में क्वालिटी मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत सारे सब टॉपिक्स उसमें कवर किए जाते हैं, तो वो भी किया जाता है और उनके भी सबके सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा अब आप बात कर रहे थे फाइनेंस की, ये टेक्निकल नॉलेज और एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज भी आपको मिल गई है। फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं तो फाइनेंस के लिए हमारी एक स्कीम है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें कि आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख रुपए तक का, सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख रुपए तक का अपना प्रोजेक्ट ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे जो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट से, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से आए हुए हैं, श्री भूपेंद्र सिंह जी। और वो फाइनेंस आपको बैंक ने करना है, बैंक की क्या टर्म्स कंडीशंस होती हैं, कैसे करना है, उसके बारे में LDM साहब सरबजीत सिंह जी आपको जानकारी देंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक जो आपने कहा था कि हमारे पास इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत है। मिलना तो वो भी बैंक के थ्रू है, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो हमारी मिनिस्ट्री को डायरेक्ट अपना प्रपोजल जब सबमिट करेंगे थ्रू हॉस इंस्टीट्यूट, और सर मुझे ये बताते हुए खुशी होगी कि सिटी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड एज ए हॉस इंस्टीट्यूट। अगर आपका कोई आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया, अपने आइडिया को आप हॉस इंस्टीट्यूट के थ्रू सबमिट कीजिए, और उसके बाद अगर आइडिया मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड हो जाता है तो उसके लिए 15 लाख रुपए, नॉट लोन, अभी तो हम लोन की बात कर रहे थे, PMEGP में लोन मिलेगा, ये एज ए ग्रांट आपको 15 लाख रुपए एक आइडिया को डेवलप करने के लिए, नर्चर करने के लिए, जो आपको पैसा चाहिए, कॉमर्शलाइज करने के लिए नहीं, नर्चर करने के लिए, सिर्फ आपने डेवलप करना अभी आइडिया को। उस डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ मशीनरीज की ज़रूरत है, कुछ किसी मेंटर की ज़रूरत है, कहीं आपको आना जाना है, उसके लिए आपको 15 लाख रुपए तक एक आइडिया के लिए मिनिस्ट्री ऑफ MSME के थ्रू दिया जाता है। 2 इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 70%, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 30%, सब्जेक्ट टू कि आइडिया आपका मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड हो जाए। और वो जो ग्रांट आपको मिलेगी थ्रू हॉस इंस्टीट्यूट मिलेगी। अगर आप सिटी यूनिवर्सिटी के थ्रू आप सबमिट कर रहे हैं तो सिटी यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको ग्रांट मिलेगी, उसके अकाउंट में पैसा आएगा, वो आपको डिस्पर्स करेंगे। आगे अगर एक इंस्टीट्यूट के 2 आइडिया अप्रूव्ड हो जाते हैं तो उस इंस्टीट्यूट को भी उन आइडिया को फर्दर डेवलप करने के लिए कोई बहुत बड़ी मशीनरी चाहिए, मान लीजिए कोई 50 लाख की मशीन है, 25 लाख की मशीन है, या उससे ज़्यादा की मशीन है, तो 1 करोड़ तक का एलिजिबिलिटी उस इंस्टीट्यूट की DPR सबमिशन के लिए बन जाती है कि वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी सबमिट कर सकते हैं और उनको 1 करोड़ रुपया इंस्टीट्यूट को मिल सकता है, हॉस इंस्टीट्यूट को, किसी को भी, एज ए ग्रांट, नॉट लोन। अब आपने अपने आइडिया को डेवलप कर लिया, नर्चर कर लिया, और आप उसको आप कॉमर्शलाइज कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन में लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी 1 करोड़ का सीड कैपिटल आपको भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ MSME की तरफ से बैंक के थ्रू मिलेगा, लेकिन वो एज ए लोन होगा, नॉट ग्रांट। तो इन सभी का आप बेनिफिट इस स्कीम का ले सकते हैं। अभी हमारा जिसकी कि 8 अगस्त कट ऑफ डेट थी आइडिया सबमिशन की, ओनली फॉर वुमेन के लिए आया था 3.0, आइडिया हैकाथॉन 3.0 लॉन्च किया गया था। उसके पहले आइडिया हैकाथॉन 2.0 लॉन्च किया गया था। आइडिया हैकाथॉन 3.0 में बहुत सारे आइडियाज़ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, हॉस इंस्टीट्यूट के द्वारा सबमिट हुए हैं, उनका एवल्यूएशन चल रहा है। अगर आपके आइडिया अप्रूव्ड हो जाते हैं, अगर आपने भी किसी ने किया होगा तो वो भी इस ग्रांट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इंटरनेशनल पेटेंट है तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी, नॉट ग्रांट, ये सब्सिडी होगी कि पहले आपने खर्चा करना है, उसके बाद आप अपने ऑनलाइन हमारी साइट पे जाकर अप्लाई करना है, तो ये रिम्बर्समेंट होगा आपको। ट्रेडमार्क अगर आपने कोई रजिस्टर करा रहे हैं, अगर रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद 10,000 रुपये तक का आपको एक ट्रेडमार्क के लिए मिल सकता है, जबकि 4500 रुपये उसकी फ़ीस होती है, 4,500 रुपये गवर्नमेंट फ़ी है। लेकिन 10,000 तक इसलिए कि अगर उसमें आपकी कोई
मान लीजिए किसी वकील की फीस है या किसी कंसल्टेंट की चार्जेज हैं, तो टोटल मिलाकर के 10,10,000 रुपये तक का मिल सकता है। इसी तरह से डिजाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 15,000 रुपये तक का मिल सकता है। तो इन सभी स्कीम्स का आप लोग बेनिफिट लीजिए। दूसरा, अगर आप कोई प्रोटोटाइप डेवलप करना चाहते हैं, जो कि हमारी डिजाइन क्लिनिक की स्कीम है, तो उस स्कीम में भी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए 40 लाख रुपए तक का एंटरप्रेन्योर को, नॉट स्टूडेंट्स को, एंटरप्रेन्योर को 40 लाख रुपए तक का और एंटरप्रेन्योर को 2.5 लाख रुपए तक का इसमें सर एज ए सब्सिडी उनको प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप कोई इस तरह का भी आइडिया है तो वो ये डिजाइन क्लिनिक का स्कीम। इसके अलावा स्कीम हमारी बहुत हैं, लेकिन अभी हमारे स्पीकर्स भी बहुत हैं यहाँ पर, लेकिन मैं थोड़ा सा एक स्कीम के बारे में और ब्रीफ कर देता हूँ आपको। आपने जेड सर्टिफिकेशन का नाम सुना है? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। जब 18 अक्टूबर 2016 को ऑनरेबल पीएम साहब पंजाब में पहली बार, दिल्ली के अलावा कभी यहाँ पर एक फंक्शन हुआ था एमएसएमई नेशनल अवार्ड सेरेमनी, तो ऑनरेबल पीएम साहब ने ही उसमें जो एज ए चीफ गेस्ट शिरकत की थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नेशनल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया का यहाँ पर किया गया था पहली बार, कहीं दिल्ली से बाहर, और वो भी पंजाब में पीआईयू में किया गया था, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो उस समय सर ने ये स्कीम लॉन्च की थी, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, कि हम कोई जो भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट ना हो, जीरो डिफेक्ट हो, और उसके से जो हम काम कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट हमारा इफेक्टेड ना हो, कि पॉल्यूशन भी ना हो किसी प्रकार का, कि जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट, एनवायरनमेंट में भी इफेक्ट ना पड़े। तो इस स्कीम को, जैसे कि आईएसओ आपकी सीरीज आपने सुनी होगी, आईएसओ 9000, आईएसओ 14000, आईएसओ 15000, बहुत सारी सीरीज हैं आईएसओ की, ये सभी कराते थे। लेकिन ये जो जेड सर्टिफिकेशन है, ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन सर्टिफिकेशन है। तो इसके लिए अगर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हैं और आपने जेड सर्टिफिकेशन करानी है, तो उसके लिए उस समय 2016 में जब लॉन्च की गई थी, तो इसके लिए 5 रेटिंग की गई थी, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड एंड प्लेटिनम। और इसमें पैरामीटर्स थे, उनको फुलफिल करना होता था, वो ज़्यादा पैरामीटर थे, तो हर एंटरप्रेन्योर उसको नहीं कर पाता था। तो इसके लिए सर इसको अभी ये इजी किया गया, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको इजी करके दोबारा जब लॉन्च किया गया है, तो 3 पैरामीटर कर दिए गए हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, 3 पैरामीटर हैं ओनली, रेटिंग 3 है। और पैरामीटर जो पहले 50 होते थे, उसकी जगह ओनली इसमें जो 6 पैरामीटर ब्रॉन्ज के लिए हैं, और 14 पैरामीटर सिल्वर के लिए हैं, और 20 पैरामीटर्स गोल्ड के लिए हैं। अगर इस तरह की भी हमारी ये स्कीम है, अगर इसका भी आप बेनिफिट लेना चाहेंगे, अगर कोई ऑलरेडी काम कर रहे हो या आप इसके बाद अगर काम करते हैं, तो इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। डिटेल्स, फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों, आप काम करने वाले बनिए। आपके लिए, जैसा कि ऑनरेबल पीएम साहब ने मेक इन इंडिया का नारा दिया है, उसको साकार करने के लिए हमारा आप सभी का सहयोग होगा, तभी ये मेक इन इंडिया बन पाएगा। कि जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हमने ढूंढना है। तो उसके लिए हमारा ऑफिस, स्टेट गवर्नमेंट, बैंकर्स सभी आपके साथ हैं, और किसी तरह की भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो, तो जैसे ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ वास्ट लिंकर्स प्राइवेट लिमिटेड की, ये इन्होंने अपना एक ऑफिस ज़रूर खोला है, ये भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैक्सिमम एमएसएमईज़ को ये बेनिफिट दिला रहे हैं, कि जो एमएसएमई की स्कीम्स हैं, सभी एमएसएमई ऑफिस नहीं पहुँच पाते, डीआईसी नहीं पहुँच पाते,
तो ये जा करके अवेयरनेस करते हैं इंडस्ट्रीज को, और अवेयरनेस देने के साथ साथ उनको स्कीम्स का बेनिफिट भी दिलाते हैं। तो आप ऐसे जो हमारे ये फैसिलिटेटर्स हैं उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं सिटी यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी दी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को, ये कि बच्चों को ये प्रोग्राम, स्टूडेंट्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जाए, और जिससे कि बच्चे इसका बेनिफिट लेकर के आगे अपना फ्यूचर में कोई भी एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश करने का डिसीजन ले सकें। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, साइट ज़रूर नोट कर लें, सबको नोट पैड और पेन दिया गया होगा, साइट नोट करें, आप साइट नोट कर लें। आपको जो जितनी भी हमारी मिनिस्ट्री की स्कीम्स हैं आप लिखें उसको my.msme.gov.in, my.msme.gov.in। इस साइट को जब लॉगिन करेंगे तो एमएसएमई स्कीम्स के बहुत सारे आइकॉन्स वहाँ पर ओपन हो जाएंगे। जिस भी स्कीम को आप प्रेफर करना चाहते हैं उसको आप रेफर कीजिए, और अगर उसके बाद भी आपकी कोई क्लैरिफिकेशन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। पीएमईजीपी की स्कीम भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, डिजाइन क्लिनिक की भी मिल जाएगी, इंक्यूबेशन की स्कीम भी मिल जाएगी, सारी स्कीम आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो मैं एक स्कीम पीएमएस की भी है, प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग सपोर्ट, जिसमें कि अगर आप कोई मार्केटिंग के लिए हैं कि अगर आप में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई भी सर्विसेज हैं तो उसको अगर आपने मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए डोमेस्टिक ट्रेड फेयर लगते हैं। तो पूरे भारत में एक साल में 2 बार आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए रिम्बर्समेंट हमारे डिपार्टमेंट से होता है। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप साइट पर जाएँ, वहाँ पर रेफ़र करें, और किसी को अगर रिक्वायरमेंट है या क्लैरिफिकेशन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, हमारे ऑफिस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से सिटी यूनिवर्सिटी का और हमारे आए हुए सभी गेस्ट स्पीकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, स्पेशली डॉक्टर अति प्रिया जी और उनकी टीम का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया। सर ने हमारे यहाँ कांटेक्ट किया तो मैंने कहा ज़रूर हम आपके स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम करेंगे। लिमिटेड ही प्रोग्राम हमारे पास होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम नहीं होते। और बच्चों मैं एक और बताना चाहूँगा, प्लीज़ एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम आपकी सिटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए प्लान किया है, जिसके लिए डॉक्टर अति प्रिया जी कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहे हैं। उन्हीं कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है जो कुछ अपना, जिनका विजन है कि हम इन फ्यूचर अपना कोई भी एंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हीं को इसमें पार्टिसिपेट किया, वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास लिमिटेड ही सीट हैं, 25 to 30 ओनली, इससे ज़्यादा कैंडिडेट को हम नहीं इनरोल कर सकते। और उसका सर्टिफिकेट भी भारत सरकार की ओर से आपको दिया जाएगा, और ये 23 से प्लान कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, वंस अगेन। Thank you so much, sir, for